नमस्कार बच्चों, क्लास 12 कुछ नोट्स होमवर्क वगैरह तो बच्चों आप दिखा नहीं रहे हैं। 1 वे ट्रैफिक चल रहा है ना, कुछ तो होमवर्क दिखाया करिए। चलिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर इज 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस and variations. Principle of inheritance and variation. All the terms, first of all, children, you clarify all the terms. Concept आप लोग इस चैप्टर के क्लियर हो गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये रोड लर्निंग वाला चैप्टर नहीं है. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दिस चैप्टर. तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सो फार यू हैव स्टडीड Mendel's law of inheritance, law of dominance, law of segregation, right? Law of dominance and law of segregation based on the monohybrid cross, right? This you have already studied, and dihybrid, when you study the dihybrid cross, they also based on the same concept, but third law of Mendel will be applicable there. So principal law of inheritance में आपने पढ़ा हुआ है law of dominance. Law of dominance. What happens here? Here the dominant character is able to express and recessive character is not able to express in F1 generation. This law is law of dominance. After that you have studied incomplete dominance. Incomplete dominance. What is this? Incomplete dominance means here when the cross is made between dominant and recessive character, then neither the dominant character nor the recessive character are able to express, but an intermediate character is developed. For example, when the red colored snapdragon plant was crossed with white colored, then in F1 generation all the progeny were pink. This you have studied. Here the dominant character is expressed. Here both neither dominant nor recessive character are able to express. Now third is codominance. Codominance. All these differences are clear to you, children. Law of dominance. In law of dominance, dominant character able to express in F1 progeny. In incomplete dominance, neither dominant character nor recessive character are able to express, but an intermediate character is developed in F1 progeny. But what is this codominance? Codominance, as the name indicates, co का मतलब है कि दोनों character, recessive और dominant character both are able to express. ठीक है, इसका मतलब जो F1 progeny होगी, it will resemble to the parents, both the parents, right? So what is codominance? In this codominance, F1 progeny resemble to both the parents, right? Means जो F1 progeny होगी, जो F1 जनरेशन है, it will show the character of both the parent whether it is dominant or recessive. ठीक है, दोनों का कैरेक्टर शो करेगी. ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या हो रहा था, ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था ना रिसेसिव, दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर बना, जैसे रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन पिंक बना था. यहाँ पर क्या होगा कि जो F1 प्रोजेनी है it will resemble to both of the parents. For example, ABO blood grouping is the best example of codominance. It means today you will study about the blood grouping, ABO type of blood grouping. ठीक है, codominance में आप इसके एग्जांपल देंगे ABO type of blood grouping. What are you studying? You are studying about codominance. codominance पढ़ रहे हैं और इसमें आप किसके एग्जांपल देंगे? Let the example of ABO blood groups. ABO blood groups. In 11th class, you have also studied about the blood groups. Blood group A, blood group B, AB, and O blood group. Mean how many type of blood groups are there? Blood group A, blood group B, and combination of AB and O. ठीक है? There are 4 type of phenotype of blood group. Blood group A, blood group B, AB, and O. Here you will study about the genotype and phenotype of the blood group. Right? Blood group A, blood group B, AB and O.
4 phenotype है, different type of blood groups also है, M and N भी होते हैं जो आप बहुत हायर क्लासेस में पढ़ोगे, but here you are only you will study about the ABO type of blood groups, right? ABO blood groups are decided by the means this blood grouping is depends on the types of RBC. किस पे डिपेंड करेगा? टाइप्स ऑफ आरबीसी. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, यू अंडरस्टैंड हियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी प्रोड्यूस ए sugar polymer. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आरबीसी की, आरबीसी यू नो द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, दिस इज unnucleated and this cell is, this outermost layer of this cell is called plasma membrane, as it is present in every type of cell membrane or plasma membrane. It means plasma membrane of RBC produces sugar polymer that protrudes on the surface of RBC, on the protrude on the surface, right? इतना बहुत है, इतना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं, जो कहाँ पर होती है? प्रोट्यूड मीन्स बाहर बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है, शुगर. ओके, नाउ देयर इज ए जीन, यू नो जीन. व्हाट इज जीन? जीन इज अ हेरिडिटी यूनिट which decide or determine one information or carry one character. So here also the gene which control this, gene which is control the ABO blood grouping. ठीक है, दिस जीन इज रिटन एज आई जीन, आई जीन, ठीक है, कैपिटल आई लिखा हुआ है, ये आई जीन डिसाइड करेगा विच ब्लड ग्रुप इज देयर, आई जीन, राइट. दिस जीन एक्सप्रेस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मींस दिस जीन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मोर देन 2 फॉर्म, आई ए, आई बी और आई. ठीक है, एलिलिक फॉर्म ऑफ दिस जीन आई इज आई ए, आई बी एंड आई, राइट. इस फॉर्म में कितने एलील शो कर रहा है ये जीन? 3, आई ए, आई बी एंड आई. बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर? वी आर डिप्लॉयड. ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. So out of these 3 genes, only 2 genes will be present in the blood groups. 3 जो एलिलिक फॉर्म है जीन की, उनमें से कितनी फॉर्म हो सकती है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में? आइदर ये होगा आई ए और आई बी, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर क्या होगा? आई ए आई होगा, मीन्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, और आई बी या फिर ये जीन हो सकता है, या फिर आई और आई ये जीन इस फॉर्म में एलिलिक हो सकते हैं. ठीक है, तो जो आई जीन है इट विल कंट्रोल द ब्लड ग्रुपिंग. ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा. ठीक है, तो इसमें से जो अगर ये एलिलिक फॉर्म है आई ए और आई बी, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ जीन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, राइट. आई अगर ये इस तरह से है, इट विल नॉट प्रोड्यूस, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, राइट. वैसे भी स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, इट मीन्स ये रिसेसिव कैरेक्टर शो हो रहा है, ये है तो ये डोमिनेंट होगा, ये होगा तो ये यहाँ पर स्मॉल आएगा. नेचुरली वो कैरेक्टर क्या हो जाता है? रिसेसिव एंड डोमिनेंट. ठीक है, तो क्या है, कौन डिसाइड कर रहा है ब्लड ग्रुप? देयर इज अ जीन आई व्हिच एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, आई ए, आई बी एंड आई. बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो आउट ऑफ these 3 gene only 2 genes will be, means a pair of alleles will be present in the human being, right. Now how these blood groups are decided? Suppose a table is there, phenotype लिखिए आप यहाँ पे, phenotype. phenotype of blood group A होगा, B हो सकता है, A, B and O. Means this is the phenotype of the blood group. Blood group A, blood group B, A, B and O. And then its genotype means allelic form. क्या हो सकती है? If blood group is A there, then gene may be in the form of I, A and I. क्लियर हो रहा है?
और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एलिलिक फॉर्म आई बी एंड आई पेयर में होंगे क्योंकि डिप्लॉयड है, तो दो एलिल्स पेयर में होंगे या नहीं। अब यहाँ पर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ये दोनों एलिलिक फॉर्म होंगी, और ब्लड ग्रुप ओ है तो ये इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ जनरली कंसीडर्ड एज रिसेसिव ब्लड ग्रुप, इसे रिसेसिव कंसीडर करेंगे, और वैसे भी हम इसका जीनोटाइप स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो सो फार यू हैव स्टडीड कि स्मॉल लेटर से लिखा हुआ क्या कैरेक्टर शो करता है, रिसेसिव, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर इफ द ब्लड ग्रुप इज ए, जीनोटाइप में भी आई ए आई, और क्या हो सकता है ये दोनों आई ए आई में मूव टुगेदर, इस तरह से भी हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी है देन इट में भी आई बी एंड आई, मीन्स ये दोनों केसेस हो सकते हैं, और लगाइए यहाँ पे। और ब्लड ग्रुप ए है तो आई है तो ये रहेगा। कितने जीनोटाइप को काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दोनों सेम है तो जीनोटाइप कितना हो गए 6 एंड फिनोटाइप्स आर 4. This question can be also asked in the board. If the blood group is A, B, O, A, B or AB or O are considered, then how many phenotypes will be there? 4 हो गए, A blood group, B blood group, AB blood group, O blood group, ठीक है 4. जीनोटाइप कैसे हुआ बताइए आप, 1 2 3 4 5 and 6, it means 6 जीनोटाइप will be, कितने हो गए 6 जीनोटाइप टोटल जीनोटाइप will be 6, ठीक है चलो। तो दिस फिनोमिना इज ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. Allele is a pair of gene. Multiple means when a gene, single gene may exist. What will be the definition of multiple allelism? When a single gene may exist in more than two allelic form. ठीक है, यानी सिंगल जीन, एक जीन कौन सा है, जीन है आई ब्लड ग्रुप में, ठीक है, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, एक से ज्यादा फॉर्म में हो रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म. तो व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म? व्हेन ए सिंगल जीन मे एग्जिस्ट इन मोर देन वन एलिलिक फॉर्म, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म. एंड द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म यू कैन आल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है, तो कोडोमिनेंस में आप किसका एग्जांपल देंगे, ब्लड ग्रुपिंग का. नाउ चिल्ड्रन कम टू हाउ द ब्लड ग्रुप्स आर डिसाइडेड. विद द इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स आर नोन, राइट, देन हाउ कैन यू डिसाइड व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप्स इन द चिल्ड्रन. सपोज माय क्वेश्चन इज दिस, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर is O, blood group of mother is O and the blood group of father is A and B. AB blood group हो गया, ठीक है. मदर का ब्लड ग्रुप क्या है O, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है AB. Then what will be the blood group in the children, right? Then how you decide what is the blood group in the children? It depends on the cross. As you have already studied, mother blood group is O. It means this is phenotype O. And it can be written as I and I, small I दो तरह से लिख सकते हैं आप, नहीं वो ब्लड ग्रुप है तो. मदर का ब्लड ग्रुप क्या है O, तो इसका जीनोटाइप इस तरह से लिखेंगे. फादर ब्लड ग्रुप क्या है AB, देन इट्स जीनोटाइप कैन बी रिटन एज I and IB. लिखेंगे ऐसे IA IB. किसका जीनोटाइप है, इफ द ब्लड ग्रुप इज AB. ठीक है, AB ब्लड ग्रुपिंग का मैंने भी आपको बताया, दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स. I कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है. तो ये यहाँ पर देखिए मदर का ब्लड ग्रुप क्या है I मीन्स O, तो जीनोटाइप आपने क्या लिख दिया, जैसे अभी मैंने टेबल में बनाया था, स्मॉल आई. फादर का ब्लड ग्रुप AB, देन इट्स जीनोटाइप विल बी IA एंड IB. नाउ मेक द क्रॉस, राइट, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इस तरह से कर दीजिए एंड मेक गैमेट्स. ये बना एक्स में ये आ गया, ठीक है, एलिल हियर द IA और ये बन गया IB. क्या बनेंगे, गैमेट्स. ये क्या थे, सेम वे में आप इसको बनाएंगे. नाउ वी मेक चेकरबोर्ड मेथड. जनरली चिल्ड्रन यू यूज दिस चेकरबोर्ड मेथड, से बहुत इजी हो जाता है क्रॉस करना. अब ये देखिए यहाँ पर
ये मदर का ब्लड ग्रुप आप यहाँ लिख दीजिए स्मॉल आई स्मॉल आई। किसका लिखा है ये? गैमेट्स फ्रॉम मदर साइड मीन्स एक्स। इधर आपने लिखा आई ए, ठीक है, किसका है ये? फ्रॉम फादर साइड। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इन द सेम वे that you have already studied how the cross are made between the back cross test cross में आप पढ़ चुके हैं। तो ये लिखिए आप आई ए, आई होगा पहले कैपिटल को ही यूज करेंगे, इसको भी लिखेंगे तो आई बी आई, यहाँ क्या हो गया आई ए आई एंड हियर आई बी आई। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड चिल्ड्रन हियर बिकॉज आई तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही शुगर, तो ये आई स्मॉल रिसेसिव कैरेक्टर हुआ और ये आई यहाँ पे डोमिनेंट हुआ, तो ये ब्लड ग्रुप इसका क्या होगा इस बच्चे का? ए। इसका क्या होगा? बी। और इसका क्या होगा? ए एंड इट हैज बी मीन्स यू कैन सी क्लियरली हियर इफ द मदर ब्लड ग्रुप इज ओ and the father blood group is AB, then there is no chances of the blood group of O or AB। ठीक है, इनमें से आपको कहीं AB नजर आ रहा है? नहीं बनेगा ना। इट मीन्स द चिल्ड्रन प्रोजेनी में हैव कौन कौन से ब्लड ग्रुप? अगर आप इसे जीनोटाइप लिखेंगे आई ए आई तो ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे तो ये बी हो जाएगा क्योंकि बी करेक्टर डोमिनेंट है, यहाँ पे ए डोमिनेंट है, और फिर से वही आया आई ए तो फिर ब्लड ग्रुप ए हो गया बी हो गया, मीन्स ए एंड बी ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट इन द प्रोजेनी। क्लियर हुआ? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल। इफ द मदर ब्लड ग्रुप इज ए, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा चेंज करिए, फादर का ए भी रहने दीजिए। इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए, ठीक है, फादर का क्या है? ए बी, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप इन द प्रोजेनी? तो आप कैसे बनाएंगे इसका? मदर का ब्लड ग्रुप ए है, इसमें आपने देखा है कि जो ए ब्लड ग्रुप के दो जीनोटाइप बनते हैं, तो ये आपको देखना है। सपोज इन फर्स्ट केस, इन केस फर्स्ट केस देखिए आप, फर्स्ट केस अगर आपने ए लिया है एंड जीनोटाइप भी सेलेक्ट किए, आपने जीनोटाइप सेलेक्ट किया, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द जीनोटाइप। ए के लिए आई ए एंड आई ए सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं आप दो जीनोटाइप ले सकते हैं अगर इसके लिए ए और बी के लिए चांसेस रहते हैं। तो अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, तो जीनोटाइप में भी आइदर दिस आई ए और आई ये दोनों हो सकते हैं। क्रॉस करिए, दोनों को क्रॉस करके आप देखेंगे। सपोज आपने ये वाला गैमेट सेलेक्ट किए, इसके बनाइए आप गैमेट्स आई ए आई, ओके, इधर कोई फादर का सेम रहे, इसको क्रॉस करिए। नाउ आई ए आई, हियर कौन कौन से गैमेट्स हैं? आई ए एंड आई बी, करिए क्रॉस, क्या आएगा ये? आई ए, इसको करिए आई ए आई बी, क्रॉस दिस ऑल्सो आई ए आई, एंड हियर मीन्स if mother has blood group A and father has blood group AB, then the chances of all the type of four blood group is here। देखो यहाँ पर कैसे हुआ, ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा इस बच्चे का? A, this will be A and B, this is again A and B। वो आ रहा है कहीं पर? नहीं आएगा। इन सेकंड केस, इस केस में वो ब्लड ग्रुप कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई? द प्रोजेनी में है ब्लड ग्रुप A, AB, A and B, ठीक है, O is not here। But in case of second case like this, क्या चेंज करेंगे आप यहाँ पर? इस गैमेट्स को चेंज करेंगे। देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप O। देखिए आप फिर से देखो, आप यहाँ पर आपने ये वाला अगर एलील सेलेक्ट किया है आई ए आई, तो यहाँ पर O ब्लड ग्रुप कहीं नहीं आ रहा है, बिकॉज O ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी ये कहीं नहीं आया, 4 out of 4 the children there is no this type of genotype is there, it means there is no chances of the blood group O is there, ठीक है। ये आपने कौन सा केस कंसीडर किया? ये। नाउ यू कंसीडर दिस केस, तो क्या करेंगे आप? इसको हटा दीजिए बस, ये हो गए गैमेट्स। यहाँ देखिए ए बी, यहाँ पर भी ए आया और यहाँ पर क्या आया?
ए भी है, यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ आएगा आई ए एंड आई बी, राइट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई, वंस अगेन देखिए कोई गलती तो नहीं हुई है, यहाँ पर आई ए आपने ये जीरो टाइप ले लिया, फादर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये रहे, ब्लड ग्रुप हुआ ए ब्लड ग्रुप आएगा अगर इसके जीरो टाइप देस, ए एंड बी तो दोनों का ए बी ब्लड ग्रुप हुआ, यहाँ पर ए डोमिनेंट है आई रिसेसिव और यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुपिंग आई ए एंड बी। इस केस में भी कहीं पर भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अबाउट द को डोमिनेंस। बहुत है इतना, ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज करोगे। डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। आई एम द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, यू डू दिस इन होमवर्क, क्रॉस करेंगे आप ब्लड ग्रुप्स का। चेंज कर रही हूं मैं, इफ ए मदर हैज blood group O, right, and father has blood group A, then write the possibility of the blood group, possibilities of blood group in progeny, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ आपका, और दिस क्वेश्चन कैन बी चेंज्ड आल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 कैन बी गिवन, इफ द वन ऑफ द चाइल्ड, इफ ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, बच्चे को ब्लड ग्रुप दे दिया, एंड फादर हैज ब्लड ग्रुप ओ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है आपका, एंड फादर हैज, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ एंड फादर हैज ए बी, ठीक है। तो सेम राइट द प्लस, राइट द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप blood groups in the progeny, ठीक है। राइट द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप्स इन द प्रोजेनी, ये आपको क्वेश्चन करने, क्रॉस करके देखना है। लेट्स अबाउट टुडेज वर्क।